Now class 12th we will study about voids and holes and which is also known as interstitials. We have already discussed about it, like in the crystals we were seeing that the atoms were placed, and these atoms, when they were placed in a crystal, they were, a particular atom was touching with the other atoms, and you were getting certain empty spaces or the vacant spaces or the unoccupied sites or unoccupied space you were getting in the lattice of a crystal, and that was known as your void or your holes or interstitials that we have discussed. Now I have made one example. Suppose I am making this particular a particular atom is been there, and in a crystal these atoms are there. Suppose this is one of the atom, and that has been, if you see, it is placed on the top of these three atoms, right? So one, two, three atoms on the top, one more atom is being placed over here. So you can see that the empty spaces, you can see between over here, this green part, right? This is the green part. Because of these three atoms, they are attached, and these are in spare space, so definitely they are not like squares कि you will not get any empty space. So over here you will get a space. तो ये वाला है, ऊपर वाला atom जो है वो, that is a particular atom that is been surrounded by some three other atoms also. So let's, I'm making it with a black pen so that you can understand, ठीक है ना? So this way the void is this much, this portion, this is the empty space, you can say. Now what type of voids are there in our course, that we have to see. We have already listened the name of tetrahedral voids and the octahedral voids. So I have written over here, there are two types of voids, tetrahedral voids and octahedral voids. Now how they are formed, let's once again focus on this particular this diagram. This is the diagram for your octahedral void. This for your tetrahedral void, sorry. The tetrahedral void, why it is surrounded, why it is arising, you can see this is the sphere that is being surrounded by three other spheres, ठीक है ना? So these three spheres are touching each other, and on the top one more sphere is there. Total four हमारे पास स्पेयर्स हैं, बट अगर देखा जाए तो ये स्पेयर जो है वो तीन स्पेयर से ऊपर रखा हुआ है, और जिसकी वजह से यू आर गेटिंग दिस एम्प्टी स्पेस, राइट? सो आपके पास टोटल स्पेयर्स कितने हैं, फोर स्पेयर, लेकिन यहाँ देखा जाए तो दो लेयरें हैं, एक ये नीचे वाली लेयर है और उसके ऊपर एक और एटम रखा है, तो ये एक और लेयर है ना? तो मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट लेयर है, नीचे जो थ्री एटम्स ब्लैक से बने हुए हैं ये आपकी सेकेंड लेयर है। तो ये आपका टेट्राहीड्रल वॉइड्स होता है, और इससे आप इजीली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आप आराम से अपने देख सकते हैं कैसे आपके वॉइड्स जो है वो जनरेट हुए। आपको यहाँ देखा गया आपके चार आपके पास पार्टिकल्स हुए हैं ना, चार स्पेयर्स थे, जिसका मतलब चार पार्टिकल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका टेट्राहीड्रल वॉइड्स बनाने के लिए। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द डायग्राम वंस अगेन ऑफ इट. Now from this diagram you can see I made this part, and now it's in a structural form. Definition is also written over here. This is the definition of tetrahedral void that you can see. It's okay. Now we'll see the octahedral voids. Now I'm making the structure for the octahedral. Three I have made, and three more you have to make. You know that in we say is octahedral, but it is not that ki 8 you will see the 6 nearest neighbors. So three I have made, and three more we have to make it. For that what you will do, एक ऊपर आएगा आपका, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी बनाएंगे. सो दिस इज़ द केस. और जो आपका स्पेस जनरेट होगा, नाउ यू कैन सी द वॉइड आई हैव मेड, एंड बेसिकली दिस इज़ द प्लेस. एक्चुअली दिस डायग्राम शुड बी लाइक दिस. ये जो इन तीनों का भी वो दिखे, और ये भी दिखे आपका ऊपर के रेड वाला भी, ग्रीन वाला भी दिखे और रेड वाला भी. तो ये पोर्शन जो आएगा बेसिकली वो आपका जनरेट करेगा आपका octahedral void को. So this is clear to you. So over here you have to be very specific about this, how many particles were participating. That is your 6 particles they are being there, and there are 6 voids around each particle, ठीक है ना? तो हर पार्टिकल पे क्या होगा, अगर आप इसको इंडिविजुअली लेके चलेंगे तो ऐसे ये 6 को अटैच होंगे, ऐसे ये हैं तो ये अलग 6 को अटैच होंगे, ये अलग हैं तो ये 6 को अलग, ये अलग अलग. तो 6 पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है, और हर पार्टिकल, हर एक पार्टिकल ये जो है इसका अपना एक देगा, ये अलग देगा. तो टोटल आपके पास 6 voids को भी इंडिकेट करेंगे हर पार्टिकल्स, ठीक है ना? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द केस, एंड आई एम शोइंग यू द डायग्राम फ्रॉम द बुक एंड डेफिनेशन ऑल्सो, सो दैट यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर. Now this is the diagram of void. You can see more clearly about octahedral void, and how it is being there in the structural form also, right? Now this is the definition part which you can see. This is the definition part.
Now we'll see about the number of voids filled and the formula of the compounds. So we'll see it, that how you can see what type of arrangements, how you can calculate the octahedral void or your tetrahedral voids. These tools are there. You have seen plenty of arrangements previously, different type of voids also. So there are few points which you have to keep in mind. First, I am writing the formulas for the this thing in CCP, that how you can calculate the your octahedral void. So in case of, suppose you want to calculate the number of octahedral void, right? So this is the formula: the number of octahedral voids is equals to number of atoms present in the closed pack arrangement. So whatever the arrangements is being given to you, the same number of atoms you will get in octahedral voids. So this is the one formula. We'll also see about the tetrahedral void formula also. It is, you can see the number of voids you have to calculate in tetrahedral, or so what is the case, the 2 into number of octahedral voids, means whatever the voids you are calculated in the octahedral, you have to multiply it by 2, or you can say the other formula can be also like that: number of tetrahedral void is equals to 2 into नंबर ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग. ठीक है, आपने यही देखा था ना कि ऑक्टाहीड्रल जो होता है वो किसके बराबर, उसके वॉइड्स किसके बराबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में वही उसके वॉइड्स होते हैं. अगर आपको टेट्राहीड्रल निकालना है तो आपको वही जो ऑक्टाहीड्रल की वैल्यू उसको डबल कर दीजिए आप, या फिर आप वही जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग कर दीजिए. तो ये एक कंडीशन है जहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ये फॉर्मूले आपको याद करना है, क्योंकि अगर ये आ गया तो यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स. देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर. एक्चुअली होता क्या है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स केटाइन और एनाइन का बना होता है. ठीक है ना, एनाइंस का साइज़ बड़ा होता है कंपैरिजन टू केटाइंस, ये बात भी हम लोग को पहले से मालूम है. ठीक है, तो होता क्या है कि जो एनाइंस होते हैं इसमें जो जो भी आपके, अगर सपोज़ करो हमने कोई कंपाउंड ले लिया NaCl, तो इसमें आपको मालूम है कि Na जो है, Na प्लस जो है वो केटाइन बनाएगा और Cl माइनस जो है वो एनाइन बनाएगा. अब जो Na प्लस आयन है जो केटाइन बना रहा है वो कहाँ पे जाएगा, और Cl है वो कहाँ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो एनाइन होते हैं वो हमेशा आपके जो लैटिस्ट होते हैं उस पे जाते हैं. ठीक है ना, और जो आपके कैटाइंस होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, तो जो वॉइड्स होते हैं उसमें जाएंगे वो आपके. ठीक है, मतलब ज़्यादा अगर हम इसको इस तरह से बोलें तो जो आपके बेसिकली एनाइंस हैं वो आपकी जो लैटिस साइट है ना, जो कॉर्नर्स की जगहें थी या इस तरह की जगहों में उनमें जाएंगे, और जबकि आपके कैटाइंस जो होंगे वो वॉइड्स में जाएंगे. ठीक है ना, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है. ठीक है, लेकिन यही वाली बातें जैसे आपकी अगर हम टेट्राहीड्रल्स में केसेस में कर दें तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, वहाँ थोड़ा सा अलग चलता है. हम कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे जहाँ आप थोड़ा ये जान पाएंगे. Now this is the numerical, the in ionic compound the anion A forms CCP टाइप पैकिंग, वाइल कैटाइन बी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1-2 ऑफ द ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स. रिड्यूस द एम्पेरिकल फार्मूला, आपको बेसिकली इसका फार्मूला लिखना है. सबसे पहले तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी है इसमें कि आपसे क्या क्या कहा गया. इनने जो आपको एनाइंस दिए रखे हैं, नंबर ऑफ एनाइंस आपने अगर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे वैसे तो उन्हें एक एब्रीविएशन दिया रखा है, उसको बी दिया रखा है, तो लेट्स फोकस ऑन इट. तो हमने भी स्मॉल ए अपना एक लिख लिया. अब हमें जो यहाँ पे बात कह रहे हैं, यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि ये टेट्राहीड्रल वॉइड बना रहे हैं, और टेट्राहीड्रल वॉइड का आपने अभी फॉर्मूला देखा भी है कि ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होते हैं. तो जो कुछ भी है आपका 2 into A आप इसे कर लीजिए. ठीक है ना, अब आपकी कंडीशन क्या है कि आपने 2 into A आपको एनाइन दिया रखा है, वो आपने अपनी वैल्यू नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स कर, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ कैटाइंस दिए रखे हैं वो बात कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैटाइंस क्या है, 1/2 ऑफ वॉइड्स हैं जो कि टेट्राहीड्रल के, यानी ये जो वैल्यू है इसकी आप 1/2 पार्ट ऑफ द टेट्राहीड्रल वॉइड, यही बात तो कह रहे हैं इंग्लिश में कि आपने बी ने करीबन 1/12 ऑफ ऑक्टाहीड्रल ऑक्यूपाई करा रखा है. तो जो ऑक्टाहीड्रल जो नंबर ऑफ आपके ऑक्टाहीड्रल वॉइड है वो तो आपने 2A निकाला ही था, तो 1/2 into 2A कर दीजिए. तो आपके पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे, ये आपके पास पहुँच गया A. ठीक है, अब आपका अगर आप रेशियो देख लें इनमें तो आप रेशियो देख सकते हैं ना, रेशियो ऑफ कैटाइंस इज़ टू एनाइंस. सो A/A, क्योंकि ये भी A निकला और ये भी A निकला, यानी आपका रेशियो बेसिकली 1:1 आ गया. 1:1 में आपका यानी फॉर्मूला आपके पास जो बना, जो आपको दिया रखा था इनने A और B, तो आपका जो ये फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है,
क्योंकि ए की वैल्यू भी आपकी 1 ही पड़ रही है और बी की वैल्यू भी 1 पड़ रही है, तो आपने लिख दिया ए भी आपका ये नेट जो है वो फॉर्मूला बन के आ गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे आप कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप भी यू कैन डू इट। नाउ द नेक्स्ट हेड इज डायमेंशन ऑफ वॉइड्स विच वी हैव टू सी। Fine. So these are in this in your course derivation is also there and numerical is there, but we have seen last year many years paper derivation is not asked, but the formula is important because in the formula numericals are asked, right? सो बेसिकली जो ये डायमेंशन होता है किसी भी वर्ड का वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपको दिया रखा है, उसमें जो कांस्टेंट एंड पार्टिकल्स हैं वो कैसा है। भाई आप तो जानते हैं कि आपके पास हर तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, बीसीसी भी है, एफसीसी भी है, एससीसी भी है, तो उसके कौन जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज है, उनका साइज़ क्या है ना, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि उन्हीं की वजह से आपको ये वर्ड्स जनरेट हुए। आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखा या टेट्राहेड्रल वर्ड देखा, तो आपके पास दो ही हैं, इन दोनों वर्ड्स को आपका इनके रेडियस को आपको लेके चलना है कि आपका वर्ड्स का रेडियस क्या रहेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा भाई आपका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिया रखा है। ठीक है, आप हमेशा क्यूबी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो लेट्स स्टार्ट विद इट। वी आर फोकसिंग ऑन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड फर्स्ट। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट। हमने एक डायग्राम बनाया रखा है क्यूब का, ये आप देख लीजिए, हमने ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपको हमने डी दिया रखा है, एफ दिया रखा है, ई दिया रखा है, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज़ विच वी हैव गिवन यू, और ये सी दिया रखा है। तो हमने सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रखे हैं। हम आपको पहले ये ध्यान देना है हमने कनेक्टिविटी कहाँ से बनाई रखी है, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम एक एटम और बना देते हैं। तो बेसिकली हम एक वॉइड जनरेट करा रहे हैं, और वॉइड हमारा जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो हमारी ये कंडीशन है, हम ग्रीन पे ले लेते हैं, इससे हम अपना जनरेट कर लेते हैं कि हमने अपना ये वॉइड्स अपना ये पूरा जनरेट कराया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ द केस हाउ वी हैव मेड एंड वी हैव टू सी। ये आपको मालूम है क्यूब है, तो ये जितने भी एज होंगे सब चाहे कहीं पे भी उठा लीजिए वो सब ए ही होने हैं आपके। तो ये आपके एजेस हैं, ये आपको हमेशा अपने दिमाग पे रखना है। नाउ सपोज़ वी आर फोकसिंग ऑन द दिस थिंग कि हम किसको क्या लें, क्योंकि देखो यहाँ पे एटम भी लगा हुआ है और आपका वो खाली स्थान भी है, ठीक है ना। तो दैट पॉइंट दिस एम्प्टी स्पेस दैट इज void इज ऑल्सो देयर, सो लेट फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, अब नाउ यू कैन सी देर आर 4 पार्टिकल्स दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ रेगुलर टेट्राहीड्रॉन। ठीक है, हम अगर मान के चलते हैं हमने 4 कॉर्नर्स को लेके हमने क्या करा है कि हमने जो अपना जो टेट्राहीड्रल हमारा वॉइड बना है वो बेसिकली हमने 4 एटम को टच कराया एक दूसरे से, तभी वो बना। और हमने सोचा कि हमने इन्हें चारों को जो लिया हमने 4 कॉर्नर्स में फिट कर दिया, इसीलिए आपने देखा 1 2 1 2 3 4 ये हमने 4 कॉर्नर्स के आइटम है, इनको हमने यूज़ करा है, ये आपस में टच हो रहे हैं, तब हमारा टेट्राहीड्रल वॉइड बन रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं, 2 तरह के रेडियस दिखेंगे आपको। टेट्राहीड्रॉन समझे ना आपने, ए लिया, सी लिया, आपका डी लिया, बी, इन तीनों एटम्स को जब आपको मालूम है कि 4 एटम्स जब आप लोगे तो टेट्राहीड्रल बनता है वॉइड, तो आपने ये 4 वो एटम चूज़ करें जिसकी वजह से आपका टेट्राहीड्रल वॉइड जनरेट होगा। अब नेक्स्ट केस क्या है कि आपके पास यहाँ पे रेडियस 2 तरीके के बैठेंगे, क्योंकि भाई टेट्राहीड्रॉन जो बीच में बनेगा वो भी तो आपका रेडियस जनरेट करेगा, और आपके पास एटम्स हैं उनका भी अपना रेडियस होता है। तो यहाँ हमारे 2 रेडियस निकल के आए, एक रेडियस तो भैया ये जो एटम्स होते हैं इनका, और एक रेडियस वो जो आपका टेट्राहीड्रॉन है ना, जो आपने ये बना, सपोज करो हमारा ये फिट हो रहा है, इन सबको इन चक्करों में बना के हमने देखा इन 4 जो एटम मिल गए, इसकी वजह से ये जो बीच में है ये स्पेस हमारा है एम्प्टी स्पेस एज अ टेट्राहीड्रॉन, टेट्राहीड्रल जो वॉइड हमारा जनरेट हो, इसका भी तो रेडियस होगा, ये भी तो स्क्वायर दिख रहा है। तो आपके पास 2 रेडियस हो गए, तो आपको ये थोड़ी बातें ध्यान रखनी कि आप किस रेडियस को क्या कौन सा आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो लेट फोकस ऑन दैट फर्स्ट। ये वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड करा अगर हम एटम को लेके चलेंगे उसका रेडियस क्या होगा, हम कैपिटल आर से रिलेट करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, ये एटम है और रेडियस क्या होगा, ये आधा, तो ये आपका रेडियस है। अब टेट्राहीड्रल जो आपका जो वॉइड बना है इसका रेडियस छोटा सा है, इसका भी रेडियस लेंगे तो छोटा सा बना दीजिए, छोटा आर बना दीजिए। तो ये 2 बातें हमने रख ली हैं। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर रेडियस बिकॉज इट्स बीन देयर इन न्यूमेरिकल्स। सो डेरिवेशन तो आया नहीं लेकिन हम फिर भी पढ़ा दे रहे हैं सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। अब आप यहाँ थोड़ा सा फोकस ऑन द टेट्राहीड्रल वॉइड एंड वी हैव टू सी कि हमने अपनी तरफ से चूज़ कर लिया था कि हम अगर हमारा टेट्राहीड्रल वॉइड, आप ये तो समझ गए ना टेट्राहीड्रल वॉइड कैसे बना, तो उस वॉइड
वॉइड का भी हमने एक रेडियस इंडिकेट कर लिया, उसको हमने आर मान लिया, और आपने अपना रेडियस ऑफ एटम ले लिया, उसको आपने कैपिटल आर माना। ये स्मॉल आर हुआ, ये बिग आर, क्योंकि एटम का रेडियस वॉइड के रेडियस से तो बड़ा हो गई होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि आपको थोड़ी सी बातें ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें जो रेड से लाइनें बनी हुई हैं, ये सब एजेस इंडिकेट करेंगी। हम एक वैल्यू ले लेते हैं ए, तो जितने भी एज होंगे सबकी ए होगी, क्योंकि ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड नहीं है। ठीक है, दूसरी केस है, अब हम आप एक थोड़ा सा देख लेते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे। ये देखिए अपना ए सी ई, ये ए सी ई में आप देखेंगे तो ये मैंने एक डायगोनल बनाया रखा है बीच में। ठीक है ना, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्चुअली आपको ये समझना है कि ये फेस डायगोनल है। इसे हमने फेस डायगोनल इसीलिए बोला है क्योंकि आपने जो क्यूब का फेस था, एफ ए सी ई फेस, उस पर डायगोनल खींचा रखा है, इसीलिए हमने इसको व्हाट वी से इट एज फेस डायगोनल, जिसको हमने ए सी कहा। हम तो इसकी वैल्यू वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल लेंगे। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ए ई सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना मेरे डायग्राम से थोड़ा, कि राइट एंगल ट्राइंगल देखिए। ठीक है, तो इट इज़ ए ई सी में आप क्या निकालना मांग रहे, ए सी की वैल्यू। अब तो आपको पाइथागोरस थ्योरम स्मार्टली पता ही होगी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो आप अपना निकाल लीजिएगा कि ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। आपको मालूम है ये जो हैं आपकी ए ई या ई सी, ये दोनों एज ही हैं, तो जो इनकी वैल्यू है वो ए स्क्वायर ही रहेगी, और आप आराम से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। दैट इज़ √2a आपका आंसर, ये निकला है ए सी। ये तो आपका तब बात हुई जब आपने ट्राइंगल, हम तो वैसे भी निकालते हैं ए सी को। आप अलग फॉर्म पे भी देख के चलिए, जब आप इसको लेके यहाँ देखिए 2 एटम लगे होंगे आपके पूरे पूरे, है ना, और एटम की रेडियस, अब आज की तारीख में हमने स्मॉल आर नहीं लिया थे, पुराने फॉर्मूलों में हमने सब में स्मॉल आर लगाया रखा था, लेकिन अब हमने यहाँ पर कैपिटल आर लिया है। तो आधा आर यहाँ का और आधा, ये आपको हम 10 बार बता चुके हैं कि जैसे अगर ये कॉर्नर में लगे तो ये 2 एटम ही आपस में ऐसे टच हो रहे होंगे ना, तो इसीलिए आधा आर ये, आधा आर ये। तो ये हमारे पास, आपके पास कितना बैठ गया, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r। अरे वाह, अब हमें इसी की 2 वैल्यूज़ मिली है। एक तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाली उस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू निकाल के, और एक हमने अपने एटम्स के रेडियस को जोड़ के निकाल लिया। नाउ वी हैव टू कैपिटल, नाउ वी हैव गॉट 2 वैल्यूज़ ऑफ इट। इट्स ओके विथ यू ऑल। सेम थ्योरी वी विल अप्लाई ए सीज़ की वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। 2r इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √2a। तो आप r की वैल्यू, आप खुद स्मार्ट हैं, √2a अपॉन 2, दिस वैल्यू विल कैलकुलेट। अब एक चीज़ और है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको √2 को ऊपर से हटाना है तो आपको √2 और √2 को नीचे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज़ आपको आती है ना मैथ्स में, कि मैथ्स में भी सिखाया गया होगा टीचर को, टीचर ने जैसे √2 और 2, अगर आप चाहते हैं कि √2 ऊपर से हटा दें तो आप √2 का ही ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है रूट से रूट ये कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू, ये 2 है ही, और ये √2 ऐसे आ जाएगा, और a तो ऊपर से चला ही आ रहा है तो a आप लगा दीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली वैल्यू a अपॉन √2 भी लिखी जा सकती है ना, लिखी जा सकती है। तो a अपॉन √2, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 1 अपॉन √2a। सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर। ये सब चीज़ें लगाइएगा नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया है कि कैसे आप निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर दीजिए और ये वैल्यू लगाइए। Now you can see I have written the direct answer of it. Now one more thing you have to focus upon अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास एक और बचा हुआ है, और वो है आपका ए सी और एफ। अब आप इस पे देखेंगे ए सी एफ में, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास बॉडी डायगोनल, मेरी बात समझ में आ रही, ऊपर आपने फेस डायगोनल निकाला। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जो आपका ए एफ है बॉडी डायगोनल। अब आप कहेंगे मैम बॉडी में कोई एटम तो है नहीं, भैया टेट्राहीड्रल वॉइड को लगाया है ना, तो वो बॉडी अंदर ही तो आएगा, बाहर तो आएगा नहीं। तो इसीलिए ये जो डायगोनल है आपका, समझ में आ रहा है ना, ये टेट्राहीड्रल वॉइड था जो अंदर आ रहा है, तो ये भी तो जगह घेर रहा है। इसकी भी तो रेडियस अपने लेके चलिए थे स्मॉल आर, इसको भी तो देखना मांगोगे। वो तो आपने बिग आर का देखा है, रेडियस निकाला, आप स्मॉल आर भी तो देखोगे, क्योंकि उन दोनों का ही आपको निकालना है। तो आप इस वैल्यू को निकालोगे। अब अगर आपको ए और एफ़ की वैल्यू निकालनी है तो आपको भैया सीधी बात है, ये वाला ट्राइंगल तो उठा के देखना ही पड़ेगा। देन यू विल फोकस ऑन विच ट्राइंगल, ए सी एफ पे अब आप देखेंगे। अब ए सी एफ में अगर आप देखेंगे देन यू हैव टू सी कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ ए एफ़। तो अगर आपको इसमें निकालना है तो ए एफ़ स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, क्योंकि आप 2 तरीके हैं ना, एक ए एफ़ तो तभी निकालेंगे हम लोग,
आर के टर्म्स में, और दूसरा ए एफ हम यही जो अपना पाइथागोरस थ्योरम होता है वो निकालते। तो ए सी एफ में हम ए एफ स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, हमारा अगर ए एफ हमें निकालना है तो हमारे पास सिंपल है ए सी स्क्वायर और ये सी एफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, ए सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। अब आपको ये तो मालूम है ना कि जो आपका ए सी है उसके पीछे आप वैल्यू निकाल के आ रहे हैं, आप चाहे तो वो लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो आप जो है आराम से अपनी वैल्यू लिख लीजिए जो आपका इसकी उसकी वैल्यू है। ना यू कैन ईजिली कैलकुलेट, आपने ए सी की स्क्वायर की निकाली थी ना वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, उसी थ्योरी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ना ए सी स्क्वायर की वैसी ना निकालिएगा, जो आपने पाइथागोरस के हिसाब से निकाली थी वो वैल्यू निकाली। ये आपको मालूम है एच ए निकाला, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो ए एफ की वैल्यू है वो यहाँ पे इस जगह पर आपकी √3a निकल आएगी। तो अब आपके पास है ना एक वैल्यू आराम से ए एफ की निकल चुकी है, लेकिन अभी आपको दूसरी वैल्यू भी निकालनी है जो हमेशा एटम्स के रेडियस को लेके चलते हैं। नाउ वंस अगेन फोकस ऑन ए एफ। एक तो हमने ए एफ की वैल्यू निकाल ली है अपनी, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे ए एफ की। दोबारा से देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि टोटल जो ए एफ की आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आप जोड़ेंगे आर प्लस 2r प्लस आर। हम आपको बताएंगे कैसे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको इस तरह से लेके चलिए, मानिए हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है तो नहीं है क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके से कॉलम है, लेकिन आपका अगर हिसाब देखिए, यहाँ पे एक एटम पड़ा हुआ है, मानिए ए पे जो लगा था, और यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है जो आपका एफ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये वॉइड भी तो बीच में इन दोनों एटमों के बीच में आ रहा है। तो देखिए ये रेडियस हमारे थोड़े एटम्स फ़र्क बने, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक आर आएगा आपका कैपिटल आर, क्योंकि हमने जो रेडियस ऑफ एटम लिया था वो हमने कैपिटल आर लिया है। ये देखिए ये वॉइड है, स्मॉल आर लिया था, अब पूरा वॉइड आ रहा है, कवर हो रहा है क्योंकि ये बॉडी है तो पूरा वॉइड आ रहा है। तो स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर प्लस आर आप करेंगे तो 2r आएगा, वही चीज़ हमने लिखी है। अब यहाँ पे एक और एटम है, उसका आधा आर मतलब उसका आर आ रहा है, आधा पोर्शन एटम का है ना, तो एक आर आपने कैपिटल आर ले लिया। तो ये चीज़ आपकी आ गई, आप इसको जोड़ दीजिए आराम से कि आर प्लस 2r प्लस आर, इसको हम जोड़ के चलेंगे तो विल गेट बिकॉज दीज आर डिफरेंट वैल्यूज़, सो यू विल गेट 2r प्लस 2r, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, दोनों एफ़ की वैल्यूज़ है उनको लिख दीजिए, जो आपकी वैल्यूज़ निकल के आई। अब थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए कि आपका जो वैल्यूज़ थी 2r प्लस 2r, और दूसरी वैल्यूज़ भी आपने जो r की अपनी ईज़िली निकाली है उसको आप लेके चल लीजिए। तो ये ए एफ़ की वैल्यू आप निकाल ली, ये जो आपने निकाला एटम्स के टर्म्स में अभी पीछे, और ये जो आपने कैलकुलेटेड पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाली थी, बस कॉमन ले लीजिए। आर प्लस आर में 2 आप जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर डिवीजन पे चला जाएगा, थ्रू ए √3a अपॉन 2 आपका डिवीजन में हो जाएगा। नाउ इक्वेट द इक्वेशन, जो आपकी सारी वैल्यूज़ आई हैं पीछे की वैल्यूज़, उनको आप जो आपने ये वैल्यू अपनी निकाली है और हम आपको दूसरी वैल्यू भी दिखा देते हैं। तो आप सिंपली इज़ दैट जो आपकी वैल्यूज़ आपने स्मॉल आर और बिग आर्स की निकाली हैं उन सब वैल्यूज़ को आप इक्वेट करके चल लीजिए। लेट्स फोकस ऑन इट। तो आपका आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर से अगर हम करें कि हमारी जो वैल्यू इसको हम टोटल आर से डिवाइड कर लें तो व्हाट वी विल गेट द आंसर, लेट्स सी। सो √3(2a) और बिग आर की वैल्यू जो हमने पीछे अपनी निकाली थी, जो हमारी बिग आर की वैल्यू आप सीक्वेंस में नोट उतार रहे होंगे तो आपको याद होगा कि 1 अपॉन √2a, ये वैल्यू हमारी जो है वो निकल के आई थी, ठीक है ना। ये वैल्यू अभी हमने पीछे से निकाली है, ये रही आपकी, इसको आपने इससे डिवाइडेड बाय बिग आर कर दिया। तो आपने बिग आर की वैल्यू आप पीछे से निकाले हुए आपके, आपने नोट्स लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये, मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप जब इस पूरी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट एन आंसर दैट इज़ r इज़ इक्वल्स टू 0.225r, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो जब आप इसको इक्वेशन, मैथ्स के स्टूडेंट हैं इतना आप कर सकते हैं, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट दिस वैल्यू 0.225r।
ये फॉर्मूला, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ जो है आपको दो बातें बताती है, प्लस आपको है ना इससे आप न्यूमेरिकल शो करें क्योंकि ये आपने एक रेशियो जनरेट करा था और उस रेशियो से आपको वही आप देखा जाए तो क्या है स्मॉल आर, अगर इसको हम कायदे से देखें तो स्मॉल आर अपॉन बिग आर इज इक्वल्स टू 0.225, ये एक रेशियो ही तो जनरेट आ रहा है। वो वाली बात अलग है कि आपने ना उसको मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर ले गए, लेकिन है तो ये रेशियो ही है। तो ये किसका रेशियो था? ये रेशियो था रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड टू दैट ऑफ द पार्टिकल। देखो ये रेडियस था, इट वाज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड टू दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल which was present in your this thing, in your crystal, right? And it is how much? It is 0.225, ठीक है। और दूसरे टर्म्स में आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका रेडियस ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड है, अगर आप इसको लेके चलिए, ठीक है, आप इसको लेके चलिए, जो रेडियस ये क्या था, रेडियस टेट्राहीड्रल वॉइड था, ये रेडियस ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड एक्चुअल में आपके किसके बराबर हो रहा है? 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये आपको इंग्लिश में थोड़ा स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रही है लाइनें। ये हो गया रेडियस ऑफ द टेट्राहीड्रल वॉइड, ये किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ योर constituent particles. If you want this thing, I'll show you, I elaborated it so that you can understand कि हमने आंसर कैसे है, वो भी मैं आगे करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ आपने लिखी थी, मैं आपको बता रही हूँ। वी कैन सॉल्व इट। जैसे अगर हम इस वैल्यूज़ को अपना लिखते हैं जो हमें दी रखी है, तो हमें इनको इक्वेट करेंगे तो हमें √3/√2 हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारी वैल्यूज़ क्या आती है? r प्लस स्मॉल आर अपॉन बिग आर इज इक्वल्स टू √3/√2, ठीक है। आप इसको ईज़िली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर। जैसे आपने कोशिश करी तो आप जानते हैं, अगर आपने इसको एक ओवरऑल आर की लिया और आर का डिवीज़न दिया तो ये आपका ऐसे गया होगा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन बिग आर √3/√2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर अपॉन बिग आर, और ये आपकी वैल्यू आ रही है √3/√2, ठीक। अगर आप इसको 1 को इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर आर अपॉन बिग आर इज इक्वल्स टू, ये आप अपना सॉल्व करेंगे पूरा, तो आप सपोज़ करिए √3/√2 का आपने वो ले लिया, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या कर दी, नहीं इन सब की वैल्यू लिख देनी है, √3 की वैल्यू, √2 की आपको मालूम है √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। बस जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, 225, सॉरी, तो 225 यू विल गेट द आंसर।